So welcome to the English class, Standard 9th, Subject English, Poem number 5, The Legend of the Northland, Episode number 2. So in this episode we are going to discuss our whole poem with the stanza. First stanza. Away, away in the Northland, where the hours of the day are few, and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. The difficult words, few माने some, थोड़ा, winter माने coldest season जो सर्दी की ऋतु अभी जारी है वो. तो यहाँ पर जो कवि ने बताने का प्रयास किया है कि जो विंटर के दिन रहते हैं उनकी कलाक जो उनके आवर्स इनका टाइमिंग्स है वो ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट रहती है, नाइट ड्यूरेशन बहुत लंबी रहती है, माने सूर्योदय बहुत देरी से होता है, बहुत देर लगती है ऐसा महसूस होता है, और सूर्यास्त दिन के अंदर बहुत जल्दी हो जाता है. तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स है वो यदि पूछे जाए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर में, which place is discussed in the stanza? That is the first. So answer is Northland is discussed here. ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में यदि आपको पूछा जाए तो इस नजरिए से आपको प्रिपेयर करना है. Another question. What specific qualities of the place are mentioned in the stanza? Answer. The specific qualities of the place are hours of the days are few and nights are long in the winter. Third one. Where does the poet want to go? Third answer. The poet wants to go away in the Northland. Fourth question. Why can't we sleep through nights in the winter? Answer. In winter the nights are so long that we can't spend them in sleeping. तो वो मध्य रात्रि में या तो जो ब्रह्म मुहूर्त जिसे कहा जाता है 4 बजे के आसपास में हमारी नींद समाप्त हो जाती है. जितनी आवश्यकता रहती है उतनी नींद आसानी से हम वहाँ तक प्राप्त कर लेते हैं. सेकंड स्टांजा. Where the harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bears' cubs in their funny furry clothes. तो यहाँ पर जो इस स्टांजा के अंदर जो वर्ड्स है इनकी बात करें तो हार्नेस, हार्नेस माने टू स्ट्रैप, एंड फैशन जिनको जोतना है, बांधना है, जो बांधने के लिए हम प्रयोजन में करते हैं इसको हार्नेस कहते हैं. माने घोड़े की लगाम होती है, बैल होता तो इनके साथ में जो बंधी हुई रस्सी होती है दैट. स्लेज, स्लेज माने आ कार्ट यूज ऑन आइस, तो आइस के ऊपर जो चलने वाला कार्ट रहता है उसे स्लेज कहते हैं. कब, कब माने यंग वन ऑफ बियर, लायन एटसेट्रा, तो सिंह, रीच वगैरह जो रहते हैं इनके बच्चे को कब बोला जाता है. फनी, फनी माने अम्यूजिंग, हास्यजनक, एंड फरी, फरी माने कवर्ड विथ फर, माने इसके ऊपर फर जो रहता है वुलन जैसा लगता है, और सबसे ज्यादा विंटर में इनके क्लॉथिस हम यूज करते हैं वही. क्वेश्चन 1 of the second stanza. Who are the children compared to? Answer. The children are compared to the bear's cubs. Second. What kind of clothes do the children wear? Answer. Children wear funny clothes. Third question. Where do the harness swift reindeer to? Third answer. The harness the swift reindeer to the sledges. Fourth question.
How do the children look like in furry clothes? Answer. The children look like bear's cubs in their furry clothes. तो ये सेकंड स्टांजा और इनका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और इनका क्वेश्चंस एंड आंसर्स यहाँ पर दिया गया है। थर्ड स्टांजा की बात करते हैं। They tell them a curious story. I don't believe it's true. And yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. तो सुनते हैं तो वो सही नहीं लगती, वो सिर्फ वार्ता ही लगती है, मगर इन वार्ता में से भी हम बहुत से मॉरल लेसन्स सीख सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चंस एंड आंसर्स। Who does not believe in the story? The poet does not believe in the story. Second question. Why does the poet narrate this tale? Answer. The poet narrates it because it has a moral lesson to be learned for the listeners. तो पोएट को ये लगता है कि जो सुनता है उनको मोरल लेसन तो जीवन में मिलता ही है। वैसे ये स्टोरीज अभी स्टोरी ही है, सिर्फ इनके अंदर कोई रियलिटी नहीं है, फिर भी इनका इम्पोर्टेंस बहुत रहता है। नेक्स्ट, whom is the story told to? Third, the story is told to the children. Fourth, who are they in the first line? Answer. They are the local people of the Northland. तो जहाँ पर लोगों की बात बताई है तो ये नॉर्थलैंड के लोकल पीपल है, इनकी बात यहाँ पर बताई गई है। स्टैंजा नंबर 4. Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about in preaching, just as he did, you know. तो सेंट पीटर जो यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर परिभ्रमण करते थे, जो प्रीचिंग वो उपदेश देते थे, धर्म की बात बताते थे, तो उसी समय की ये बात यहाँ पर दी गई है। फिफ्थ स्टांजा. He came to the door of a cottage in traveling round the earth where a little woman was making cake and baking them on the hearth. तो यहाँ पर जो हर्थ माने फायर प्लेस, तो यहाँ पर सेंट पीटर जो आते हैं दरवाजे के ऊपर, जो लेडी है वो केक पका रही है, इनकी बात बताई गई है इस स्टांजा के अंदर। और इनके जो क्वेश्चन आंसर आपके लिए बहुत इजी है, आप पढ़कर ही समझ सकते हैं। सिक्स स्टांजा की बात करते हैं। एंड बीइंग फेंट विथ फेसिंग for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. तो सेंट आता है, वो भिक्षा मांगते हैं, वो कहते हैं कि आपके स्टोर में से मैंने आपके पास जो है रखी है केक, इसमें से एक केक मुझे खाने के लिए दीजिए। फेंट माने वीक, कमजोर है। फास्ट माने अवॉइड हैविंग द फूड ऑन स्पेशल ओकेशन, माने उपवास जो हम रखते हैं फास्ट। तो वो आपके पास जो फूड है, मेरा उपवास है, मुझे खाने नहीं मिला है, मैं पूरा वीक हो गया हूँ, तो मुझे कुछ दीजिए। तो ये वो वहाँ पर भिक्षा के लिए मांगते हैं। तो यहाँ सेवंथ स्टांजा के अंदर क्या होता है, वो लेडी क्या रिस्पॉन्स देती है, इनके बारे में समझते हैं। सो she made a very little piece of cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. तो वो ओल्ड लेडी को वो गिफ्ट करना है, दान देना है, तो वो छोटी सी केक बनाती है। अपने परिवार वाले के लिए वो बहुत बड़ी केक बनाती है, मगर वो जब छोटी केक बनाती है, वो बेक करके वो जब नीचे रखती है ट्रे के अंदर, तो वो देखती है तो वो बहुत बड़ी बन जाती है। फिर इनको ग्रीडीनेस जग जाती है, वो देने के लिए मन नहीं होता उनका, तो वो क्या करती है, वो रख देती है और नई छोटी बनाती है।
तो वो जब उतारती है नीचे बैक करके, तो वो जब देती है तो वो भी बड़ी लगती है, तो वो भी रख देती है। ऐसा हर बार होता है और उनकी ग्रीडीनेस बढ़ती जा रही है और फिर जो सेंट वहाँ पर है वो क्रोधित हो जाते हैं। इनके बारे में आगे के स्टांजे में हम पढ़ते हैं। 8th stanza. Therefore she needed another and still a smaller one, but it looked, when they turned it over, as large as the first had done. Then, जैसे मैंने बताया कि हर बार वो छोटी पकाती है, मगर जब वो बनती है तो बहुत बड़ा केक बन जाती है। तो नेक्स्ट स्टैंजा के अंदर हम समझते हैं, Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. तो वो बहुत छोटी सी बनाती है, माने कोई वेफर जैसे बनाई है, मगर वो जब देती है तो बड़ी बन जाती है। आगे के स्टांजे में 10th स्टांजे में समझते हैं क्या होता है। For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away, so she put them on the shelf. तो वो जो भी केक उनको खाने के लिए देने जाती है, वो केक बड़ी बन जाती है और फिर इसके बाद वो नहीं देती और अलमारी में रख देती है। नेक्स्ट स्टांजा के अंदर 11th स्टांजा। Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. तो जो सन्यासी वहाँ भिक्षा वृत्ति के लिए आया है, वो बहुत भूखा है, उनको खाने नहीं मिला है, वो बहुत ही वो अपने आप को अशक्त दुर्बल वो महसूस कर रहा है। तो वो फिर क्रोधायमान हो जाता है इस लेडी के बिहेवियर से और फिर वो उनको अभिशाप दे देता है। And he said, you are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. तो वो क्रोधायमान हो जाते और फिर बताते हैं कि आप मनुष्य जन्म के अंदर आपके पास ये सभी सुविधाएं हैं, फिर भी आप किसी और को हेल्प रूप नहीं होते, मदद रूप नहीं होते। आप बहुत कनिंग है, कंजूस है, तो आपको मनुष्य अवतार में रहना आपके लिए अब आवश्यक नहीं है। मैं आपको अभिशाप देता हूँ। वो शाप देते हैं सन्यासी और उनको वुड पेकर में कन्वर्ट कर देते हैं। 13th stanza. Now you shall build as the birds do, and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard, dry wood. तो अब वो कहती है कि अब आप पूरे दिन धीरे 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 बोरिंग माने लकड़ को अंदर छेद करके खुदाई करके आपको जितना मिल सके, बहुत कम परिश्रम, बहुत ज़्यादा, और आपको उपार्जन जो मिलना चाहिए रिवॉर्ड वो बहुत कम मिलेगा। और इसी तरह आपको अब अपना भोजन भी इकट्ठा करना है। जिस तरह से मैं बहुत बार आपके पास मैंने मांगा मगर फिर भी आपके पास था, आपने नहीं दिया, तो इस तरह से मैं भी ऐसा ही आपको आशीर्वाद देता हूँ, अभिशाप देता हूँ कि आप भी लकड़खोर बन जाओ। Next stanza, 14th. Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. तो जब वो वहाँ गई चिमनी के पास ही, तो वहाँ से वो वुडपेकर में ट्रांसफॉर्म हो गई, कन्वर्ट हो गई। 15th stanza. She had a scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame. तो उन्होंने जो स्कारलेट कैप जो पहनी थी
वो स्केप ही वहाँ रही, बाकी का सब कुछ है वो पूरा उनका बदन और उनका जो कुछ है वो ब्लैक कलर का हो गया, उनके वस्त्र भी सभी वो वहाँ पर बर्न हो गए। उसके बाद का नेक्स्ट स्टैंजा एंड द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम, एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वूड where she lives in the trees till this very day, boring and boring for food। और अब पूरे कंट्री के अंदर जहाँ कहीं भी आप देखते हैं तो वो वुड पैकर है, वो धीरे 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 अपना बोरिंग करते हुए अपना खाना पकाते हैं और वही अपना जीवन ऐसे ही गुजारते, माने बहुत थोड़ा सा फूड के लिए भी उनको बहुत बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। तो ये वहाँ पर होता है। तो आज हम जो भी वुड पैकर देखते हैं, लकड़ खुद देखते हैं, वो सभी और कोई नहीं मगर ये ग्रीडी लेडी थी जिन्होंने सेंट पीटर को खाना खाने नहीं दिया था। माने स्टोरी सच्ची है या झूठी है वो हमें पता नहीं है, मगर मॉरल लेसन हमारे जीवन का यही है कि ईश्वर जो हमें शक्ति देता है, जो संपत्ति देता है, जो संपदा देता है, वो दूसरों की भलाई के लिए देते हैं और उसी में यदि हम उसको संचय करते हैं तो ईश्वर राजी होकर दुगना हमें देता है, चौगुना हमें देता है। और अगर राइट टाइम पे हम किसी को हेल्प नहीं करते तो ईश्वर हमारी संपत्ति भी धीरे धीरे छीन लेता है, क्योंकि ये इसीलिए तो हमें मनुष्य बनाया है कि हम दूसरों को मदद करें। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने बताया कि सर्विस टू द पीपल इज द सर्विस टू द गॉड, वैसे मनुष्य की भलाई में ही सच्ची ईश्वर की हम पूजा प्रार्थना करते हैं, वही सच्चा पूजा प्रार्थना है। ओके, सो इस स्टांजा का क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको भेजूंगा, वो आपको फेयर बुक के अंदर लिखना है। ओके, सो यहाँ पर दूसरे एपिसोड में इतना ही। हैव ए नाइस एकेडमी।